Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the fifth video lecture of the chapter Force and Pressure. As we have discussed yesterday, activity 11.6 and 11.7. I think you must not be having any problem in activity 11.6, but I want to continue this video from activity 11.7. Since yesterday's videos was bit long, it was more than 25 minutes, so I stopped immediately. So I want to continue my work, means my explanation from there itself. If you all have gone through both the videos that I have provided, the first which was video produced, means which I had made, and the second one which the video which was an animation to show how electrons are arranged. So I will continue my work from there. At first I want to explain you the activity. In that activity you have seen, or if you have gone through that activity, I have told you, when this straw B and this plastic straw both were rubbed, then it was charged, both were charged, and there was repulsion between this. So for that I have told you, between two similar charge there will be always repulsion. They will try to move away from each other. If there is dissimilar charge, there will be attraction. Both will try to come closer. But one more thing I have told you, there is attraction between a charged body and an uncharged body. In this activity there was two steps. In first, it was plastic straw was not rubbed, it was simply hand, and when you brought a charged plastic straw close to this was attracted towards this. Means you will say why there is attraction. For that respect, that perspective of that activity I will explain you today. Just roughly I will brush it up. You know, all matter is made up of atom. Atom is made up of three fundamental particles: electron, which is negatively charged; proton is positively charged; neutron do not have any charge. Arrangement of these fundamental particles in atom is protons and neutron is present at the center, that is called nucleus, and electron keep revolving around this. So if I say any atom, for example any element whose atom we are talking about, for hydrogen, helium, lithium, beryllium, anything, and there is number of elements there that you will see in coming chapters. So first instance I will take one example of sodium. Sodium have atomic number is 11. It means sodium have 11 proton and 11 electron. So how these electrons and protons are arranged? 11 proton is present in the center, that is the nucleus. Around these electrons are present. The electrons present around the nucleus is in a definite cell. ये भी आगे जाकर आप समझिएगा, थोड़ा सा हम आगे बता दे रहे हैं. जो पहला इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे नजदीक का जो एरिया होता है, जहां पे पहला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको सबसे फर्स्ट सेल कहते हैं. इस सेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो बच गए 9 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10. अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1.
तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम where electron is found is called valence cell, and this is called valence electron. As you know, there is a magnet and you have placed a ball bearing here and a ball bearing here. The amount of force by which this ball bearing is attracted towards this magnet depends upon the distance. अगर नजदीक है तो ज्यादा ताकत से खींचा जाएगा, दूर है तो भी खींचा जाएगा, बट कम ताकत से खींचा जाएगा. So force of attraction depends upon the distance. So since electron is present in the outermost orbit and it is farther, दूरी है compared to this electron, so this electron is weakly bonded. weakly मतलब कमजोरी से ये खींचा हुआ है. तो मतलब मेरे कहने का क्या है, हम इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से निकालना चाहेंगे तो हमको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा. इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से निकालना चाहेंगे तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा. अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहेंगे तो हमको इन दोनों से ज्यादा एनर्जी, मतलब जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है. तो कल हम आपको एक और बात बताए थे, हीट एंड लाइट, these two also are the form of energy. इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हीट और लाइट दोनों एनर्जी है. चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक मैटर है, अगर ये मैटर है तो इसका मतलब इसमें एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम होंगे और हर एटम में एक प्रोटॉन होगा, मतलब एक न्यूक्लियस होगा और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. सो ये है और ये इलेक्ट्रॉन, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, प्लस एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, हम सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं. एक मैटर है, उसमें 1 2 3 4 5 6 छोटी 18 एटम होते तो बहुत है, हम बस समझाने के बोल रहे हैं. 18 एटम है, अगर 18 एटम है तो इसका मतलब 18 न्यूक्लियस होगा और 18 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बस मानने के लिए हम मान ले रहे हैं. और न्यूक्लियस में मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है और इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो गया. तो इसका मतलब इस मैटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं. एक बात और, हम बोले थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी खर्च होता है, तो इसका मतलब हीट और लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एट इवन रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर मतलब रूम का कुछ तो टेम्परेचर होगा, 25 28 कुछ तो टेम्परेचर तो हीट है ना, गर्मी तो है ना, और रूम में लाइट है, लाइट भी और एक एनर्जी है. तो इन दोनों के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है. फ्री होने के कारण क्या होता है, ये ऑर्बिट से तो बाहर आ जाता है, बट अभी भी वो इसी मैटर में है. मतलब मेरे कहने का क्या मतलब, ये उन बच्चों की तरह है जो अपने घर से तो निकल आए हैं मगर अपने कॉलोनी में ही खेल रहे हैं. है तो वो उस घर के, तो उस घर से वो निकल आए हैं खेलने के लिए, एनर्जी उत्साह में वो अपने घर से निकल आए हैं, मगर उनमें इतना उत्साह नहीं है कि वो कॉलोनी से बाहर चले जाएं. एक बाउंडेशन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मम्मी पापा का डर है. सेम थिंग आई एम सेइंग हियर, दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम द outermost orbit, but it is not getting that much energy that it jump out of the matter. एनर्जी इतना ही मिल रहा है कि वो ऑर्बिट से बाहर आ रहे हैं, मगर इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो इससे बाहर चले जाए. तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हैं.
इस मैटर में इधर उधर जाने के लिए फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है। सो वी कैन से दिस मैटर हैव sea of electrons, electrons का समुद्र है ये। We can say millions of electrons are there. And one more thing I am saying you that electron can only move, proton remains fixed at the center. Okay, now imagine, इतना समझ गया? तो अब और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए इस स्ट्रॉ के बारे में। अगर ये स्ट्रॉ है तो इस स्ट्रॉ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है इसको यहां ले आए। अब हम बोल रहे हैं ये या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। मान लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो कि पेपर से रगड़ने के कारण इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के पेपर में चला गया होगा। मतलब when you rub it with the paper, some electron jump from the straw and enter into the paper. So it means now the straw is positively charged, and when you bring it close to this uncharged straw, तो क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अभी हम बताए आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये क्या होंगे? इस प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आकर जमा हो जाएगा। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो जाएगा और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वाला पार्ट जो है वो हल्का सा नेगेटिवली चार्ज होगा, और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये इससे अट्रैक्ट होगा। सेम थिंग आप ऐसा भी करते हैं जब आपके बाल कंघी है, ड्राई बाल में आप कंघी को झाड़ लिए, मतलब कंघी कर लिए, और उसके बाद मान लीजिए ये पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है। तो देखिए जब आप बाल को अपने कंघी मतलब कंघी को जब इस बाल में रगड़े होंगे तो या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा और या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो दोनों केस में क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। चार्ज को हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज अनदर थिंग। So it is either positive or negative, no problem. Now, when we are talking about this paper, it has proton and electron, proton and electron. When you brought this comb close to this paper, if this comb is positively charged, all the electron will move towards the top of the paper, and top of the paper become negatively charged. And we know there is attraction between opposite charge, so comb is positively charged and top of the paper is negatively charged, so it will attract the paper. Now reverse the scenario को उल्टा कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया पेपर से, तब क्या होगा? तो हमको मालूम है कि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और ये स्ट्रॉ भी नेगेटिव, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉ से दूर भागना चाहेंगे, तो ये सारे के सारे कहां आ जाएंगे? इस साइड। सारे इलेक्ट्रॉन आकर यहां जमा हो जाएंगे। जब ये यहां जमा हो जाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा। सेम थिंग यहाँ कंघी में भी देखिए, अगर मान लीजिए कि कंघी नेगेटिवली चार्ज है और ये पेपर जो है, इस पेपर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समझिएगा छोटा ही पेपर है बट समझाने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
जब ये कॉम इसके नजदीक लाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज और कंघी भी नेगेटिव चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले आएंगे। जब नीचे चले आएंगे तो ऊपर का पोर्शन हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नीचे का पोर्शन नेगेटिव चार्ज होगा। अब चूंकि हम जानते हैं देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन आई कैन tell you that there will be attraction between a charged body and a uncharged body. So attraction take place between positive and negative, and it also take place between positive or negative and neutral. Means if a body is charged, a body is neutral. So attraction take place between oppositely charged body and a charged and uncharged body. And repulsion always take place between similarly, means repulsion always take place between same charge. Means if the body is positive and positive, there will be repulsion. This if it is negative and negative, there will be repulsion. Okay, so hope you understand the activity 11.7. I don't find, still if anyone has any problem you can ask, no issue with that. So with this we have completed that force of non-contact force. In that we have explained magnetic force and electrostatic force. Gravitational force, I have told you, the force means the force by which two heavy mass objects pull each other is called gravitational force. Some point you have to note it down in gravitational force. Due to this gravitational force we are bound to the earth. हम अर्थ पे अगर हैं तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ मूव अराउंड द सन, मून मूव अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड नेक्स्ट थिंग, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. Whatever weight is there of any object is due to gravitational force. So this point you have to note down. Significance of gravitational force. It keeps us bound to earth. The earth revolves around the sun and the moon revolve around the earth due to gravitational force. The weight of an object on the earth is the gravitational force of the earth acting on the object. मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है ये डिपेंड करता है. जैसे मान लेते हैं कि ये एक ग्लास है, इस ग्लास में हम थोड़ा सा पानी डालें, मान लीजिए कि 50 बूंद पानी डालें,
पानी डालें तो वो 50 बूंद पानी, हर बूंद को अर्थ अपने तरफ ग्रेविटी तक अपने ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब इस 50 बूंद का जो वेट होगा वो होगा, मान लीजिए कुछ ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम वेट क्यों है? क्योंकि हर ग्राम पे, मतलब हर ml पे अर्थ कुछ फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी मान लेते हैं कि इसको हम पानी से भर दिए हैं, अब ज्यादा हो गया पानी, ज्यादा पानी है, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स है। मान लेते हैं एक ऐसी कह रहे हैं हम, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, मान लीजिए कि एक धागा से बांध के इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, और हम इसको होल्ड करके रखे हैं अपने हाथ में। तो अगर 5 धागा से बांध के खींच रहे हैं तो कुछ तो फोर्स आपके हाथ में लग रहा होगा, वो इसका वेट है। अभी मान लो कि हम 50 धागा बांध दिए हैं, सब इसको खींच रहा है नीचे की ओर, एक लिमिटेड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो अब मेरे हाथ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो ज्यादा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आधा गिलास पानी अपने हाथ पे रखे तो कुछ तो फोर्स होगा, वो जिस फोर्स से मेरे हाथ को नीचे करने का कोशिश करेगा। और अगर हम एक जग पानी अपने हाथ पे रख लें तो उसमें ज्यादा वेट लगेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और हर मॉलिक्यूल को ग्रेविटी अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए इस पे फोर्स ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड वेट। आप जैसे इसको ऐसे समझ के देखिए, अब मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी लिए हैं, आप एक लीटर पानी लीजिए, चाहे एक पत्थर लीजिए, एक छोटा सा पत्थर लीजिए, उस पत्थर में जितना मास है, जितना सीमेंट, मतलब जितना मिट्टी कंकड़ है, मान लीजिए कि सब फिक्स है, वो तो बदल नहीं रहा है। अभी उस पत्थर का वेट यहाँ पे 100 ग्राम है, और इसी पत्थर को हम लेके चले गए मून पे ले गए, तो इस पत्थर का वेट जो होगा 1/6 होगा, मतलब 100 ग्राम का 1/6। तो इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं पत्थर तो वही है, जितने पार्टिकल्स इसमें धरती पे थे और जितने पार्टिकल्स इसके मून पे है सेम है, बट बदला क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए उसी पत्थर का वजन धरती पे ज्यादा है, बट उसी पत्थर का वजन मून पे कम है। आप धरती पे उछलिएगा तो आपको तकलीफ होगा, थोड़ा दूर उछलिएगा फिर आप थक जाइएगा। मून पे आप एक बार जंप लीजिएगा तो लगेगा कि 5-6 जंप के बराबर एक जंप है, क्योंकि मून आपको कम फोर्स से खींच रहा है। ओके, गॉट द पॉइंट? एंड एक और छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, फिर इसको स्टॉप करेंगे, वीडियो फिर लंबा हो गया। ग्रेविटी इज द फोर्स with which earth attracts objects towards itself। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दुनिया में और इस ब्रह्मांड में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमारे बीच में, आपके बीच में, आप मेरे सामने खड़े हैं तो भी ये फोर्स लगेगा, बट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा और आपका मास जो है लगभग सेम है। बट अगर इसका मास में बहुत ज्यादा का अंतर होगा तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मास और एनी 2 ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ और इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी, एक मून हो सकता है, एक दूसरा प्लेनेट हो सकता है, कोई तीसरा प्लेनेट हो सकता है, कोई 2 प्लेनेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हम और आप हो सकते हैं, कुछ भी। बट ग्रेविटी की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक मास ऑलवेज अर्थ होगा और दूसरा उसके अलावा कुछ भी। सो यहाँ पे एक जो है अर्थ है और दूसरा उसके अलावा हम हैं, आप हैं, कोई भी है, तो उसको कहेंगे ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ।
So hope you understand. In next video we will discuss about pressure.